لبنان فلسطینیوں کا دوسرا گھر ہے. اسرائیلی جارحیت میں 42,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے. بین الاقوامی برادری اعزاز میں تقریب سے خطاب. جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس پاکستان تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری. 26 اس پر سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد. سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ 87,000 کی سطح عبور. انڈیکس میں 727 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 87,194 پر بند. 26 ارب روپے سے زیادہ مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا. پنجاب میں زرعی اور صنعتی ترقی کے لیے ایک اور منصوبہ. بیلاروس کے تعاون سے ٹریکٹروں کی مقامی سطح پر تیاری کا پلانٹ لگانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات. زرعی شعبے کی ترقی. ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات. معاشی استحکام کے لیے اقدامات اور اصلاحاتی ایجنڈے پر گفتگو. وزیر خزانہ کا سماجی تحفظ کے منصوبوں میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی شمولیت پر زور. موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نئے مواقع کی تلاش. کراچی میں بین الاقوامی ٹیکسٹائل اینڈ لیدر نمائش. جدوجہد پر بیگم نصرت بھٹو کو خراج عقیدت. مرحومہ نے خواتین کی خود مختاری اور سیاست میں شمولیت کے لیے اہم کردار ادا کیا. مادر جمہوریت کے نظریے کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے. صدر آصف علی زرداری. عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے، ہیڈ لائنز میں آنا نہیں. عام آدمی کے مقدمات. وکلاء تنظیموں اور عوام کا جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس تقرری کا خیر مقدم. پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، ڈیرہ اسماعیل خان بار ایسوسی ایشن سمیت مختلف تنظیموں کی. خیبر پختونخوا حکومت کی عدم توجہ. صوبہ مسائل کا گڑھ. عوام انتشار بیڈ گورننس کے باعث عوام کا پی ٹی آئی سے اعتماد اٹھ چکا ہے. تجزیہ کاروں کی رائے. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں عدم پیشی. عدالت کا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے کا حکم. 26 اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. گنڈاپور کے ضامن کو نوٹس جاری. اسرائیل کی غزہ میں خون کی ایک اور ہولی. مختلف علاقوں پر بمباری میں 74 فلسطینی شہید، 130 زخمی. شدید گولہ باری سے اسپتالوں میں انتہائی گھمبیر صورتحال. اقوام متحدہ کی شمالی غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن اور زندگی بچانے والی ادویات پہنچانے کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ. لبنان پر صہیونی جارحیت جاری. بیروت اور طائر کے علاقوں پر گولہ باری. جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سعودی عرب پہنچ گئے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی. مختلف کارروائیوں میں 150 سے زائد نوجوان گرفتار. کالے قوانین کے تحت مقدمات درج. جعلی مقابلوں میں نشانہ بنائے جانے کا خدشہ. قابض انتظامیہ نے مقامی افراد کی املاک ضبط کرنے کا عمل تیز کر دیا. روس اور چین کے صدور کی ملاقات. ولادیمیر پوتن اور شی جن پنگ کا دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال. کسی تیسرے فریق کو ہدف بنائے بغیر علاقائی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق. دونوں ملک عالمی فورمز پر بھی تعاون بڑھائیں گے. روس میں برکس سربراہ اجلاس. اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر غور. 30 سے زائد ملک برکس میں شمولیت کے خواہش مند ہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن. چین کے صدر شی جن پنگ کا بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ کا کل سے آغاز. دونوں ٹیمز کی پریکٹس. ملتان ٹیسٹ جیتنے والی قومی ٹیم برقرار. پہلے روز شائقین کا داخلہ مفت. میچ صبح 10 بجے سے پی ٹی وی سپورٹ. ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ. پاکستان شاہینز کی سیمی فائنل میں رسائی. متحدہ عرب امارات کے خلاف 114 رن سے کامیابی. 180 رنز کے ہدف کے تعاقب میں یو اے ای ٹیم 65 رنز پر آؤٹ. ایونٹ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست.
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इसी तरह पगलू और टकलू घर तो पहुंच गए, मगर उनको बहुत मार पीटी। तो कैसी लगी मेरी स्टोरी? बहुत अच्छी। सबसे अच्छा पार्ट तो ये था जब टकलू नाली में गिर गया था। अब मैं सुनाऊं? ये तो छोड़ो, तुम लोग ऐसी स्टोरी लाते कहाँ से हो? हमारा अम्मी अबू ऐसी स्टोरी सुनाते। अब बच्चों, अगली कहानी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी है इसके अब्बू और मेरे बचपन की। मेरा नाम इसने टकलू रख दिया था और मैं हो गया हूं ना टकलू। बच्चों की गुफ्तगू में दिलचस्पी लें, उनसे सवाल पूछें और उन्हें ज़बान सिखाने के लिए कहानियाँ सुनाएं और उनके साथ खेलें। बच्चे ज़िंदगी में कामयाब होंगे जब आप करेंगे परवरिश हर कदम। वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे के आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी तलबा से कहा है कि पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। फ़लस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम फ़लस्तीनी तलबा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ हैं। रिपोर्ट करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। गजा पर मुसलसल हमलों से जानी व माली नुकसानात के अलावा फलस्तीनियों का तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ, जिसकी वजह से तलबा का तालीमी सफर मुतासर हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फरकैन बशमूल ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट एंड अल खिदमत फाउंडेशन ट्रस्ट और हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान यूके से मिलकर फलस्तीन के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 145 तलबा और तालबात को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिले का इंतजाम कराया। पाकिस्तान में आने वाली फलस्तीनी तलबा और तालबात का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जहां तक मुमकिन हो सका आपके क़याम को आरामदेह बनाने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। Pakistan is your second home. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Our institutions are there for you. Our teachers are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 145 फलस्तीनी तलबा की मौजूदगी शुरुआत है। मजीद फलस्तीनी तलबा को पाकिस्तान में लाने और उन्हें तालीम देने के लिए इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। We have to invite many more 100 students from Gaza to Pakistan who can get highest quality education in Lahore, Karachi, Peshawar, Quetta, Islamabad, and we will be playing host to you. वज़ीर आज़म ने कहा कि फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहर के शहर और गाँव के गाँव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces, which have so far killed more than 43,000 Palestinian brothers and sisters. The international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. वज़ीर आज़म ने खुसूसी मोहब्बत का इजहार करते हुए अरबी ज़बान में कहा कि आप हमारे मेहमान नहीं बल्कि खानदान के अफराद हैं। कोऑर्डिनेटर सेहत डॉक्टर मलक मुख्तार अहमद ने कहा कि फलस्तीनी तलबा को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले दिए जा रहे हैं।
PMDC के सदर प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान ताज ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर 121 तलबा को रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जबकि 24 तलबा को लाहौर के आला मेयार के कॉलेजेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। तकरीब के आखिर में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का फलस्तीनी तलबा और तालिबात के साथ ग्रुप फोटो भी हुआ। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर राशिद वली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। सदर मुमलिकत ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3), 177 और 179 के तहत की। उन्होंने जस्टिस याहिया आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के बाद खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर जस्टिस याहिया आफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी की जिंदगी और पेशावराना सलाहियतों के हवाले से देखते हैं इजाज हुसैन की ये रिपोर्ट। जस्टिस याहिया आफरीदी का शुमार उन जजिस में होता है जो हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी के दाई रहे हैं। बतौर जज उनके फैसले इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी आइनी तशरीह के हवाले से मुतअद्दिद अहम मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस में शामिल रहे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस की ताहयात नाअहली का केस, पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद का मामला हो या फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें, या फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रेफरेंस पर अपील का मामला। जस्टिस याहिया आफरीदी न सिर्फ इन तमाम पेचीदा आइनी मामलात की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा रहे, बल्कि उन्होंने अक्सरियती फैसलों की हिमायत और इख्तलाफ में आइन के तनाजुर में अपना नुक्ता नजर वाज़ेह अंदाज में बयान किया। जस्टिस याहिया आफरीदी का ताल्लुक जिला कोहाट के गांव बाबरी बांडा से है। वो 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में BA किया। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसिस कॉलेज कैमरा यूनिवर्सिटी से LLM किया। जस्टिस याहिया आफरीदी की 1990 में हाई कोर्ट और 2004 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील इनरोलमेंट हुई। 2010 में जस्टिस याहिया आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया। 15 मार्च 2012 को वो बतौर हाई कोर्ट जज मुस्तकिल हुए और बाद आजाद 30 दिसंबर 2016 को उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। जस्टिस याहिया आफरीदी 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए थे। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और संग मील, इंडेक्स ने मुल्क की तारीख में एक और रिकॉर्ड बनाते हुए 87,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। इस बारे में तफसील जानते हैं सिद्रा फातिमा से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन ब दिन नए रिकॉर्ड्स कायम होने का सिलसिला जारी है, जबकि 100 इंडेक्स ने आज भी ऊंची उड़ान जारी रखी और हिस्से के कारोबार में 727 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि मार्केट 87,000 से बुलंद सतह पर बंद हुई। स्टॉक तज्जियाकार कहते हैं कि मौशी आशारिया के शोबे में बेहतरी, गैर मुल्की सरमायाकारी और मुकामी सरमायाकारों का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की फिजा पर मुकम्मल एतमाद है, जिसके बायस हिस्से की मंडी में बतदरीज तेजी रकम हो रही है। सऊदी अरेबिया से आपके पूरे एक डेलीगेशन आया था, आपके 25 के करीब सेक्टर्स में मुआहदे हुए हैं $2 बिलियन के। इसके अलावा रिक्विडिक में सऊदी अरेबिया के 15% स्टेक लेने का है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसके क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है। मैं तो ये कहूँगा इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से सारी चीज़ों को गैदर करके उनको एग्जीक्यूशन की है, तो वो एक उनको क्रेडिट जाता है। PIB यील्ड हम देख रहे हैं कि 13.5% के पास आ गई हैं और TFC बिल्स भी 15% से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है और मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिवली ट्रेड कर रही है। हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने में आ रही है। अब जब इंटरेस्ट रेट फर्दर यहाँ से कम होगा तो सरमायाकारों को लगता है कि आने वाले दिनों में जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, खासतौर पे सीमेंट, स्टील और ऑटो सेक्टर, उनमें नुमाया बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबारी दिन के दूसरे सेशंस में ऑल टाइम हाई इंडेक्स ने ट्रेड किया, जबकि सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, बैंकिंग, स्टील एंड आयरन समेत टेक्सटाइल के शोबे ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बाजार हिस्से में 69 करोड़ 92 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 26 अरब 82 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 212 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 173 कंपनियों की शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 60 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। SIFC के ताउन से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर मिलेट ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी ने माली साल 2024 के दौरान
10.64 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर किया, जो सालाना तकरीबन 167% बनता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने 2023 में 4 अरब रुपए की मजमूई आमदनी दर्ज की है। मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड की माली साल 2024 में फी हिस्सा आमदनी 55.46 रुपए रही, जबकि पिछले साल फी हिस्सा आमदनी 18 रुपए 53 पैसे रही। ISFC की हिमायत से मिलेट ट्रैक्टर जैसे इदारों की कामयाबियों के जरिए मईशत में मुस्बत तब्दीलियों का बायस बन रही है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने निजकारी के अमल में पेशरफ्त के हवाले से इजलास की बजरिया वीडियो लिंक सदारत की। इजलास में निजकारी और हवाबाजी के वजीर और मुतल्लिका वजारतों की सेक्रेटरीज ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौलत मुश्तरका सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत के लिए समोआ में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए 26 अक्टूबर तक अमरीका के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़जाना की साइडलाइन मुलाकातों और मसरूफियात की तफसील बताएंगे उमर फारूक। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वाशिंगटन में मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना, मरकजी बैंकों और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की जानिब से इमदाद की फराहमी के फ्रेम वर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की शमूलियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में इदाराजाती सरमायाकारों के साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और पाकिस्तान के मस्बत मुआशी इशारियों के बारे में आगाह किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हुकूमत टैक्स टू GDP की शरह के तनासुब में इजाफे, सरकारी इदारों की निज़ाम हुकूमत में बेहतरी, निजकारी और राइट साइजिंग जैसे इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के नायब वज़ीर ख़जाना ब्रैंड नीमन के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स का दायराकार बढ़ाने, कारपोरेट आमदनी की टैक्स शरह को हम आहंग करने, सब्सिडीज और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम में ताउन पर अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जदआन से भी मुलाकात हुई। दोनों वज़रा ने बाहमी मफाद पर मबनी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद गहरा करने, दो तरफा तजारत को फ़रोग देने और कलीदी शोबों में सरमायाकारी की सहूलत फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्किया के वज़ीर मालियात ने भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने दो तरफा तजारती हजम को बढ़ाने से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। गवर्नर टास्क फोरम में IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ौर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम के लिए दुरुस्त समत में गामजन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेकाम, टैक्स महसूलात में इजाफे और इस ज़िमन में देरीना साख्ती मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे मेटेलिसा ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर बेलारूस के ताउन से पंजाब में ट्रैक्टर बनाने के लिए प्लांट लगाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सूबाई हुकूमत बेलारूस के साथ ज़राअत, तिजारत और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहती है। मुलाकात के दौरान बेलारूस के सफ़ीर ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में मुआवनत की पेशकश भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में जारी तामीरात और एमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत भी की। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर जाफरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में अमराज़ दिल के अस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के खसूसी दौरे के मौका पर एमरजेंसी में मरीजों की आमद और उन्हें फौरी तौर पर इमदाद के तरीकाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बहावलपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए PIC मुंतकिल होने वाले मरीज की इयादत भी की। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस अवाम का हक है। हुकूमत आम आदमी को इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम जारी रखेगी। इस मौका पर PIC हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब को अस्पताल की अपग्रेडेशन के मनसूबे और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि PIC में इंतजामी बेहतरी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। उन्होंने अस्पताल में मरीजों का रश कम करने के लिए PIC 2 मंसूबे को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने मरीजों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब धीरानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली जारी है। इस बारे में तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। बजिया बेड़े विच शहनाइयां सखियां डोली पावण आइयां, तियां जमदियां होण पराइयां।
عوامی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا عوام کی فلاح کا ایک اور منصوبہ، اب غریب اور نادار گھروں کی لڑکیوں کی شادی کے لیے وسائل حکومت فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت مستحق بچیوں کی نہ صرف اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا جائے گا بلکہ ہر نئے جوڑے کو حکومت کی طرف سے 1 لاکھ روپے اسلامی بھی دی جائے گی۔ شادی پر حکومت کی طرف سے ہر جوڑے کے 20 مہمانوں کو کھانا بھی پیش کیا جائے گا۔ پورا پیکج بنایا گیا ایز اے گفٹ جو کہ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس میں کچھ فرنیچر آئٹمز ڈالی گئی ہیں، کچھ کچن آئٹمز ڈالی گئی ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے اجتماعی شادیوں کے پروگرام دھی رانی کے پورٹل کا آغاز کر دیا ہے، جہاں درخواستوں کی وصولی کا عمل جاری ہے۔ آن لائن اپلیکیشنز کا سلسلہ جاری ہے جو کہ 21 اکتوبر سے 5 نومبر تک رہے گا۔ جو اپلیکیشنز سبمٹ نہیں کر سکتے ہیں یا آن لائن پورٹل ایکسیس نہیں کر سکتے، وہ متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جا کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی اپلیکیشن کو وہیں پہ فل کر کے اپلوڈ کیا جائے گا۔ پنجاب دھی رانی پروگرام میں شمولیت کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرائی جا سکتی ہیں اور اس حوالے سے ہیلپ لائن 1312 بھی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب دھی رانی پروگرام کم وسیلہ افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹی وی نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ترقیاتی اسکیمز، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو ہوئی۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے فلاحی ویژن کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے منشور پر عمل کرتے ہوئے پنجاب کو مختصر مدت میں حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی والدہ بیگم نصرت بھٹو کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 13 برس بیت گئے۔ ان کی سیاسی خدمات کی تفصیل سے آگاہ کریں گی نورین آصف۔ محترمہ نصرت بھٹو 1929 میں ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئیں۔ وہ 1951 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے سیاسی سفر میں بھی بھرپور ساتھ دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اسیری کے دور میں بیگم نصرت بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی، جہاں سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پھانسی پر نہ صرف صبر سے اس تکلیف کا سامنا کیا بلکہ ثابت قدمی سے پیپلز پارٹی کو سہارا دیا۔ بیگم نصرت بھٹو نے 4 سال تک پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ بعد میں بیماری کے باعث یہ ذمہ داری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سونپ دی گئی۔ بیگم نصرت بھٹو 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئیں۔ خواتین اور بچوں کے لیے فلاحی خدمات سر انجام دینے پر انہیں بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ شوہر کی شہادت کے غم سے نکلی تو 26 سالہ جوان بیٹی کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ ان کی تکالیف صرف یہیں تک نہیں رکی، دوسرے صاحبزادے میر مرتضیٰ بھٹو کا قتل بھی ان کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا، جس کے بعد وہ الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ بیگم نصرت بھٹو کو حکومت پاکستان نے ملک اور جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں نشان امتیاز سے نوازا اور مادر جمہوریت کا خطاب دیا۔ 23 اکتوبر 2011 کو وہ طویل علالت کے بعد اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ انہیں گڑی خدا بخش میں ان کے شوہر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو مادر جمہوریت اور عزم و حوصلے کی علامت ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی میں بیگم نصرت بھٹو کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ بیگم نصرت بھٹو کی 13ویں برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو نے عوام کے حقوق اور جمہوریت کے لیے بحالی کے لیے طویل جدوجہد کی۔ بیگم نصرت بھٹو مدبر رہنما تھیں۔ انہوں نے خواتین کی خود مختاری اور سیاست میں شمولیت کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بیگم نصرت بھٹو کے نظریے کو مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کو ان کی 13ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں بیگم نصرت بھٹو کی جمہوریت کے لیے بے لوث وابستگی پر کہا کہ بیگم نصرت بھٹو جمہوریت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی علامت ہے۔ مسلسل چیلنجز کے باوجود ان کا عزم اور ہمت ان کی غیر معمولی شخصیت کا ثبوت ہے۔ اور ناظرین، سندھ اسمبلی نے 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ قرارداد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پیش کی۔ رپورٹ کریں گے سید جہانگیر علی۔
सिंध असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में करारदाद पेश की जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद पर बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरमीम के बाद पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत हुई है। जब उनका लीडर जो पार्टी का सदर है वो कहता है कि जी हमने कंसेंसस डेवलप कर लिया, मौलाना फजल रहमान साहब वाले जो था अमेंडमेंट उस पर, और वो वही अमेंडमेंट थी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने साथ मिलकर बनाई थी, तो फिर तो ये मुत्तफिका हुआ। हाँ, एक वो शख्स जो किसी असेंबली का मेंबर नहीं है उसने शायद उसको पसंद नहीं किया, बाकी सारी असेंबली मुत्तफिक थी इस पे, और ये सबको पता है, तो ये भी मुत्तफिका अमेंडमेंट है जो मंजूर हुई है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम अच्छी सियासत का नतीजा है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। इस तरमीम की मंजूरी में तमाम जमातों का मस्बत किरदार है। ऐवान में पीपल्स पार्टी की रुकन निदा खोड़ो ने मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर खिराज पेश करने के लिए करारदाद पेश की जिसे मुत्तफिक का राय से मंजूर कर लिया गया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा और कबाइल के अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुल्क भर से बार काउंसिल्स ने भी नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देते हुए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, करक और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने जस्टिस याह्या आफरीदी को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने और 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी को मुल्क और कौम के लिए खुशाइंद करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा और DI खान की बार कौंसल्स और कबायली अवाम का कहना है कि KPK से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी सूबे के लिए एजाज है। हमारे लिए पश्तून भाइयों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारा एक पश्तून भाई इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गया, तो ये हमारे मसाइल को भी अच्छी तरीके से समझता है, इससे हमारे मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। अदालत में अगर ये सारे मसाइल हल होते हैं और कोई ऐसा बंदा होगा जो हमारे लोकल कल्चर को, उसकी कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी, लोकल कॉन्फ्लिक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो अच्छी तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर पाएगा। मेंबरान के कम वही फैसला बांधे याह्या आफरीदी रागे और मेरिट बांधे याह्या आफरीदी ताल्लुक अमदा से अगर न दे चे द कबाइलो ना इला लरू चे द आगे अगर मसाइल के कम दिनो आगे बम पदे के रोचती इसकी तैनाती पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इंतहाई फ़ख्र महसूस करते हैं और दुआ करते हैं कि ये अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और ख़ुसूसन पसमानदा जनूबी अज़ला के लिए खुशहाली का बाइस बने। याह्या आफरीदी चुकुम चीफ जस्टिस जोड़ सुलनो पदे बंदे बमू फ़ख्र को ची द पख्तनो ना हम 10 कस दौरा मख के वतलो नो उम्मीद दा ची दा बरे पख्तनो प उम्मीदुन बांधे पूरा खपल जान रसवी और द पख्तनो दे पारा कार कवी। बार कौंसल्स का कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में खातिर ख्वाह कमी आएगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान एयरफोर्स की कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क इंडिस शील्ड 2024 पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस पर जारी है। मश्क में तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की फ़ज़ाइया समेत दीगर अहम ममालिक के दस्ते शरीक हैं। एयरफोर्स के JF-17, J-10C और F-16 तैयारे मश्कों में हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मश्क का मुशाहिदा करेंगे। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद शरीक ममालिक के माबैन अस्करी ताउन और तस्वीराती शराकतदारी को फ़रोग़ देना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्की के कौमी दिफा के वज़ीर यासिर गोलर से इस्तंबुल में मुलाकात की, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की जानिब से तुर्की को गोश्त की बरामदात पर भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला ने गोश्त बरामदात की पेशकश का खैर मकदम और इस्तंबुल में आलमी एक्सपो के लिए शानदार इंतजामात की तारीफ की। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत तहकीक और टेक्नोलॉजी के शोबे में इक़दामात कर रही है। किसी भी शोबे की तेज़ तर तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। रिपोर्ट करेंगे फहद अजीज।
اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ 3D پرنٹنگ برآمدات میں اضافے، ماحول دوست مینوفیکچرنگ اور پسماندہ طبقات کو قابل رسائی ٹیکنالوجی فراہم کر کے بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ The new technologies are democratizing the whole concept of development. If you look at 3D printers, they are bringing production in the hands of local people, local communities, and breaking the monopolies of the large corporations and above all the capital which was needed to produce things. احسن اقبال نے کہا کہ عالمی منڈی میں پاکستان کے خام مال کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ 3D پرنٹنگ سے خام مال کی بہتر مارکیٹنگ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کلائی ٹیکنالوجی کا تجارتی بنیادوں پر استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی لائبریریوں اور لیبارٹریوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرنا ہوگا۔ فہد عزیز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے زیر صدارت چین میں 1000 پاکستانی زرعی ماہرین کی تربیت کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ تربیت کے لیے زیادہ صلاحیت رکھنے والے افراد کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے تاکہ تربیت یافتہ افرادی قوت کے ساتھ زیادہ سرمایہ کاری ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ تربیتی عمل میں تمام صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے منصوبے میں پیش رفت کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی اور تربیتی اقدام کے لیے ایک منظم ایکشن پلان تیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انرجی پارٹنرشپ نے توانائی کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، توانائی کی تجارت اور پائیدار معاشی ترقی کو فروغ دیا ہے۔ چین میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ سی پیک منصوبے کے ذریعے پاکستان نے توانائی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 8000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی قومی نظام میں شامل ہو چکی ہے۔ قومی توانائی میں 60% قابل تجدید توانائی کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری نے کانفرنس کے موقع پر چین کے نیشنل انرجی ایڈمنسٹریشن کے ایڈمنسٹریٹر سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انرجی پارٹنرشپ چین کے مؤثر عالمی قیادت کی ایک روشن مثال ہے۔ دونوں رہنماؤں نے سی پیک کے دوسرے مرحلے کے آغاز کو اہم قرار دیتے ہوئے پاکستان میں بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نظام کو جدید بنانے اور دو طرفہ تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر سرمایہ کاری عبدالعلیم خان نے چین اور پاکستان کے مابین بزنس ٹو بزنس سرگرمیوں کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ چین سے کاروباری اشتراک میں اضافہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ چین میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے اشتراک سے ہونے والے روڈ شو میں پاکستانی ادارے شرکت کریں گے۔ چین کے مختلف شہروں میں لیدر اور فشریز کے لیے منعقدہ بڑے کنونشنز میں نمایاں پاکستانی کمپنیاں شریک ہوں گی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت 3 روزہ 5ویں ٹیکسٹائل اینڈ لیدر نمائش ٹیکسپو کراچی میں جاری ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نورین آصف۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافے اور پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے ٹیکسپو کا میلہ سجایا گیا ہے، جس میں دنیا بھر کے 62 ممالک کے 500 سے زائد مندوبین شرکت کر رہے ہیں، جبکہ پورے ملک سے 270 سے زائد نمائش کنندگان اپنی مصنوعات متعارف کروانے کے لیے نمائش میں شریک ہوئے ہیں۔ نمائش میں آنے والے ملکی اور غیر ملکی مندوبین پاکستانی مصنوعات سے متاثر نظر آئے۔ This exhibition will help us create a business relationship between my county and this country, our business people, to get cheaper and quality products from Pakistan. I'm looking for suppliers, new suppliers. Always we are working with India, but a lot of people tell us go to Pakistan, the prices will be much better. There is a good quality also, that's why. پاکستان میں بہت ساری چیزیں نئی ہیں جو ہم جاپان لے جا کر اپنی لوکل مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں اور کلچر کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ نمائش کنندگان کا کہنا ہے کہ ان کے کاروبار اور مصنوعات کی برآمدات کے فروغ کے لیے یہ پلیٹ فارم ایک بہترین ذریعہ ہے۔ کافی ساری اپرچونیٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ، ڈفرینٹ ایکسپورٹرز آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر آنے کا ہمیں بہت سارے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ کسٹمرز ہمیں مل جاتے ہیں، کچھ آرڈرز بھی مل جاتے ہیں یہاں پر۔ میں خوش بھی بہت ہوں کہ یہاں پر ہماری مارکیٹنگ بڑی اچھے سے ہوگی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اس نمائش سے $42 کروڑ کی سرمایہ کاری ہوئی تھی۔ اس سال دگنی سرمایہ کاری کی توقعات ہیں۔ 5ویں ٹیکسٹائل اینڈ لیدر نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے ٹیکسٹائل اور چمڑے کی اعلیٰ معیار کی مصنوعات کو نئی منڈیوں تک رسائی کے لیے ٹیکسپو ایڈیشن بہت مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
कराची में 5वीं बैन अल-अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सिंध ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास से। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर जाम कमाल ने कहा कि टेक्सटाइल और लेदर मसनूआत पाकिस्तान की कौमी बरामदात का 60% हिस्सा हैं। टेक्सपो नुमाइश में पाकिस्तान के आला मयार की मसनूआत रखी गई हैं। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान माहौल दोस्त और शफाफियत के आलमी मयार पर पूरा उतर रहे हैं। The textile and leather industry plays a vital role in Pakistan's economy. The strong position of textiles and leather manufacturing in Pakistan has historically been driven by availability of skilled workforce and local supply of major input materials which underpin the sector's competitive advantage. तकरीब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के बहुत मौके मौजूद हैं। नुमाइश के इनेकाद से टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में सरमायाकारी के मौके पैदा होंगे। The exhibition provides a unique opportunity to highlight our remarkable talent, creativity and commitment to excellence of our businessmen and craftsmen to the global audience. तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दुनिया देख सकती है कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है, जहां आज 60 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शरीक हैं। I would also like and I'll also request Jam Kamal Sahab that they should come and have one of this expo or event in Peshawar also because we have got a lot of I can say opportunities there. इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए टी-डैब के CEO जुबैर मोतीवाला ने कहा कि इस नुमाइश से $80 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी मुतवक्के है। बाद में तीनों रहनुमाओं ने 5वीं बैन अल-अक़वामी टेक्सटाइल एंड लेदर नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह किया और नुमाइश का दौरा करते हुए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर सजाई गई पाकिस्तानी मसनूआत का जायजा लिया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कैंसर के मरीजों को वफाकी हुकूमत की जानिब से मुफ्त अद्वियात की फराहमी से मुतालिक वजारत मनसूबाबंदी से रिपोर्ट तलब कर ली है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने वजारत मनसूबाबंदी से कराची को पानी की फराहमी के मनसूबे K4 पर पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब की। वजारत मनसूबाबंदी की पार्लिमानी सेक्रेटरी वजीहा कमर ने आगाह किया कि मनसूबे के लिए रवा PSDP में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और ये तवक्को है कि ये अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। कौमी असम्बली ने कानूनी मुआवनत और इंसाफ अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने पेश किया। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने सैयद नवीद कमर के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि हुकूमत टैक्स और FPR में इस्लाहात के हवाले से संजीदा है। रवा साल जुलाई से अब तक जनरल सेल्स टैक्स की मद में 701 अरब रुपए वसूल हुए, जबकि अरबों रुपए की टैक्स चोरी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। अवाम इंतशार और फसाद की सियासत से बेजार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के हालिया ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने PTI को यकसर मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में बेशतर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तजियाकारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा धचका है। सूबे में अमन ओमान की बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस अवाम का PTI से एतमाद उठ चुका है। तजियाकारों का कहना है कि नताइज से जाहिर होता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अब खाली नारों और जज्बाती तकरीरों से धोखा नहीं दिया जा सकता। सिविल जज इस्लामाबाद मुबश्शिर हसन ने असलहा और शराब बरामदगी केस में अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर 26 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ज़हूरुल हसन अदालत पेश हुए। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी की तामीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत ने SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकाम जारी करते हुए आइंदा समात पर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके कमरा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समात 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्याती अमल रोकने के लिए इंतशार की सियासत PTI का वतीरा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमामी मसाइल के हल पर तवज्जो के बजाय एहतजाज में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू और कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब की तफसील जानते हैं आयशा आफरीन से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से बड़ी सियासी जमातों की मुशावरत से मंजूर हुई है, जबकि PTI ने अपने ही बनाए हुए ड्राफ्ट को वोट नहीं दिया। PTI के जो चेयरमैन थे गौर खान साहब, उन्होंने मौलाना साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब हमारा एक ही ड्राफ्ट है, हम एक ही ड्राफ्ट में मुतफिक हैं। तो हमने भी तो मौलाना साहब का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया है, तो इनडायरेक्टली तो हमने PTI का ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक शख्स से इजाज़त लेंगे जो ना किसी पार्टी का चेयरमैन है, ना मेंबर पार्लियामेंट है, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम जो है वो उसकी पास हो गए और कहा कि हम वोट नहीं करेंगे। अपने ही बनाए हुए ड्राफ्ट को उन्होंने जो वोट नहीं किया। गवर्नर KPK का कहना था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं, वो सूबे और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की बात करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आपको आवाम ने इसलिए मुंतखब नहीं किया कि आप हर हफ्ते इस्लामाबाद जाकर जलसे जुलूस और एहतजाज करें। इससे पहले तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हम बिजनेस कम्युनिटी को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत देते हैं और इस सिलसिले में सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि गुड गवर्नेंस किसी भी इदारे की कामयाबी का बुनियादी अंसर है और गुड गवर्नेंस से न सिर्फ कारोबार फलता फूलता है बल्कि ये मईशत और मुआशरे के लिए भी मस्बत किरदार अदा करती है। आखिर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली कंपनियों को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड्स दिए। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सेनेटर कासिम रोंझो की हिमायत में लसबेला में बड़ी तादाद में आम शहरियों ने रैली निकाली और मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर कासिम रोंझो के इस्तीफे पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि कायद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर जान मेंगल का कासिम रोंझो के साथ सलूक सरासर काबिल मजम्मत है। एक ज़ईफ शख्स से सियासी फायदे के लिए ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना किसी तरह भी मुनासिब अमल नहीं था। मुजाहिरीन का कहना था BNP की सियासत का मकसद मफादात का हुसूल है, हम कासिम रोंझो के साथ हैं। उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से अलग होने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई के खिलाफ दायर रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत हुई। आदिल बाज़ई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट नहीं डाला। कमीशन ने रेफरेंस की कॉपी आदिल बाज़ई के वकील को फराहम करने की हिदायत करते हुए आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। इलेक्शन कमीशन में सेनेटर शहादत आवान की दरखास्त पर सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली की दरखास्त पर भी समाअत हुई। सैफुल्लाह अबड़ो के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें दरखास्त की कॉपी नहीं मिली, लिहाजा वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत देते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस के मुताबिक सैफुल्लाह अबड़ो ने जाली दस्तावेज़ात जमा करवाई और कागजात नामजदगी के साथ मुकम्मल असासे ज़ाहिर नहीं किए थे। कश्मीरी अवाम कल अपना 77वां यौम तासीस मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की तारीखी अहमियत के बारे में जानते हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान की रिपोर्ट में। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ मुसल्ला जदोजहद करते हुए रियासत का 5000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करवा लिया और यहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। 13,297 मुरब्बा किलोमीटर इलाका आज़ाद हुआ, उसे आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से दुनिया जानती है। 24 अक्टूबर 1947 को यहाँ एक आज़ाद नुमाइंदा हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। ये महज इत्तफाक नहीं था बल्कि इन शोदा की कुर्बानियों का समर था जिन्होंने आज़ादी के शजर की आबियारी अपने लहू से की। आज़ाद कश्मीर के अवाम आज आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं और इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा उस वक़्त होता है कि जब हम मुज़फ़्फ़राबाद के हालात को श्रीनगर के हालात के साथ, आज के श्रीनगर के हालात के साथ जोड़कर देखते हैं। उस वसी कैनवस में जब देखते हैं कि जहां आज आज़ादियां छीनी जा रही हैं, जहां आज न अमल की आज़ादी है, न बोलने की आज़ादी है, न लिखने की आज़ादी है, बिल्कुल एक प्रिजन की जो सूरत हाल है वो मकबूजा कश्मीर बनकर रह गया। आज़ाद कश्मीर का यौम तासीस कौमी जोश जज्बे से मनाया जाएगा और इस सिलसिले में तकरीबात के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम यौम तासीस भरपूर अंदाज में मनाकर तजदीद अहद करते हैं कि रियासत के मकबूजा हिस्से को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवा कर रियासत की हकीकी आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने जिला गांदरबल में हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत 150 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया है। KMS के मुताबिक काबिज भारतीय फौजी एहलकारों ने गिरफ्तार अफराद के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और मुख्तलिफ दस्तावेजात समेत कई कीमती अशिया भी जब्त की हैं।
गिरफ्तार किए गए अफराद में से ज़्यादातर के खिलाफ काले कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। भारतीय जेलों में पहले ही 5000 से ज़्यादा कश्मीरी कैद हैं। ताज़ा गिरफ्तारियाँ कश्मीरियों को मज़ीद खौफ रास में मुब्तला करने की भारतीय पॉलिसी का हिस्सा है। कुल जमाती हिर्रत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नजरबंद जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने जेल से एक पैगाम में कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर पर मुसलसल जारी गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाएं। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है जब भारत ने कश्मीर की ख्वाहिशात पामाल करते हुए जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया। कुल जमाती हिर्रत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमाओं ने श्रीनगर में मुनक़िदा एक इजलास में मकबूजा इलाके की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया। इजलास में मीर वाइस उमर फारूक, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर रहनुमा शरीक थे। इजलास में मकबूजा इलाके में जारी कत्ल व गारत, छापों और बिला जवाज़ गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया गया। मोदी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद ये मीर वाइस और दीगर रहनुमाओं की पहली मुलाकात थी। मीर वाइस उमर फारूक ने एक बयान में कहा कि 5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद साथियों के साथ मुलाकात पर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमारे कुछ साथी अब भी कैद हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला गांदरबल में मोदी सरकार की तरफ से किए जाने वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में 1 डॉक्टर और 6 मजदूर हलाक हुए। मोदी सरकार ने हमेशा की तरह इस दफा भी इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया है और भारतीय मीडिया जोरों शोर से प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। मोदी सरकार का ये वतीरा है कि उसने हमेशा असल मसाइल से नजर हटाने के लिए रियासती सतह पर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 1000 घरों की तामीर का ऐलान किया है। ये मनसूबा किंग सलमान रिलीफ की जानिब से कम्युनिटीज़ की दोबारा तामीर नौ और अवामी सहूलती इक़दामात के एक वसी सिलसिले का हिस्सा है। मनसूबे के तहत 590 घर डेरा इस्माइल खान, 410 घर राजनपुर और डेरा गाजी खान में तामीर किए जाएंगे। तामीर किए जाने वाले 1000 घरों में हर घर 2 कमरों, 1 किचन और 1 बाथरूम पर मुश्तमिल होगा। इस मंसूबे से 7000 अफराद को महफूज रिहाइश का फ्राहम की जाएगी। नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने क्लाइमा वेंचर्स प्रोग्राम के आगाज का ऐलान कर दिया है। क्लाइमा वेंचर्स प्रोग्राम की लागत 50 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 22 अक्टूबर को कोरिया में 40वें बोर्ड मीटिंग में क्लाइमा वेंचर के लिए 25 मिलियन डॉलर्स का ऐलान किया। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ग्रीन क्लाइमेट फंड हेनरी गोनालेसा ने कहा कि हमें क्लाइमा वेंचर की हिमायत पर फख्र है। ये कदम पाकिस्तान के बढ़ते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा उठाते हुए आबो हवा के मसाइल के हल के लिए तैयार करता है। पाकिस्तानी बोर्ड मेंबर बराए ग्रीन क्लाइमेट फंड नोमान बशीर भट्टी ने कहा कि क्लाइमा वेंचर कम कार्बन वाली मौसमियाती लचकदार मईशत की तरफ मुंतकली को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने, जबकि इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पठवार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील शहीद बेनज़ीराबाद 40, जबकि सकरन में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद, मैं हूं समी इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू हो रहा है। मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानिए निसार मेहदी से। पाकिस्तान रिकॉर्ड देयर विक्ट्री। टेस्ट सीरीज किसी एक टीम के नाम होगी या बराबरी पर खत्म होगी, फैसला होगा रावलपिंडी टेस्ट में। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों ने रावलपिंडी में प्रैक्टिस की और अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी।
न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच जैसन ग्लेस्पी ने कहा कि आखिरी टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी की है। मैच के नतीजे में टॉस का किरदार अहम होगा। We forge those relationships with players. You know, we try to create an environment that's a safe space for them to speak freely and be open and honest and that learning environment. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि रावलपिंडी की पिच स्पिनर्स के लिए साजगार लग रही है। हमने मैच के लिए 3 स्पिनर्स मुंतखब किए हैं। Who knows what's going to happen? It looks a very good wicket at the moment. With some cricket on it, it might change. But look, we've obviously taken a read off the wicket as much as we possibly can, and we feel the longer it goes, the more the spin's going to come into play. रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज शायकीन के लिए स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट की टीम को बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड ने फास्ट बॉलर एटकिंसन और लेग स्पिनर रिहान अहमद को टीम का हिस्सा बनाया है। ग्रीन कैप्स ने आखिरी बार 2015 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी और अब उसके पास अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाने का यह बेहतरीन मौका है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान और इंग्लैंड में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने शिरकत की। इवेंट की तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम की रिपोर्ट में। ब्रिटिश हाई कमीशन के ताउन से इस्लामाबाद में सजा स्ट्रीट क्रिकेट मैच, जिसमें पीसीबी, लाहौर कलंदर्स, टीच फॉर पाकिस्तान और इंग्लैंड की 12वीं आर्मी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रिकेट मैच टीच फॉर पाकिस्तान और टीम यूके की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद टीच फॉर पाकिस्तान की टीम 5 विकेटों से फाते रही। टीम यूके ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवर्स में 103 रन बनाए। टीम टीच फॉर पाकिस्तान ने हदफ 9 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। 13 साला साइम हुसैन को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। I'm really glad in many ways that we're 1 each coming out of Multan, because I think it means the game in Pindi is going to be an absolute brilliant cracker of a match. It's not about activities, it's all about partnership. और टीच फॉर पाकिस्तान हमारी ऑलरेडी पार्टनर है, हमारे सरकारी स्कूलों में इनके 120 बच्चे पढ़ा रहे हैं। आखिर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। प्लेयर ऑफ द मैच साइम हुसैन को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दस्तखत शुदा बैट तोहफे में दिया गया। क्रिकेट फैंस पर मुश्तमिल बर्मी आर्मी टेस्ट मैचेस के दौरान पाकिस्तान में खूब एंजॉय कर रही है और उनका कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान वो यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला भी करेंगे। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।